everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institution. So students, as you all know that I am explaining lesson the tissues, and nowadays we are discussing about epithelial tissues. I told you about 4 types of epithelial tissues in my previous classes, and today I am going to discuss about 2 more types of epithelial tissues. So 5th number of epithelial tissue is glandular epithelium and 6th one is stratified epithelium. So let's start with glandular epithelium. So as you all know, the word glandular is related with the word glands. Glands which are present in our body, which secretes enzymes which are helpful in our body for different ways. So these tissues secrete some chemical substances are composed of glandular epithelium. Those epithelial tissues which secrete some chemical substances, for example enzymes or hormones, are composed of glandular epithelium. What are the location of glandular epithelium? As I told you that it is related with the word gland. So it is present only in the inner linings of types of glands. Whatever gland in our body is present, all inner linings of the glands were composed of glandular epithelium. And now when it came to its function, it helps in the secretion of enzymes, secretion of hormones, secretion of chemical substances, secretion of mucus and secretion of milk. Why? Because glands help to secrete these type of things only, and this is the only function glands perform in our body. That is why these epithelial tissues help in these kind of functions. And when it came to stratified epithelium, it is formed by many layers of cells. Cells placed one above the another, and when it was placed one above the another, it forms a membrane like all pairs rest on a basement, and epithelium becomes thicker because of this thickness of the membrane. After that, what are the location of stratified epithelium? So it is found in so many parts of our body like skin, buccal cavity, pharynx, esophagus, conjunctiva of eyes, urethra, vagina, larynx, epiglottis and so many more. And what are its function? Its only function is the protection of these all organs. So students, हम लोग ने पढ़ा है epithelial tissues के बारे में, उसके different types के बारे में. आज 2 more types हम discuss कर रहे हैं. तो 5th number है glandular epithelium. The word glandular जो है वो related है directly glands से. As you all know, हमारी body में different types of glands present होती है जो helpful होती है different types of enzymes को secrete करने के लिए या फिर hormones को हमारी body में secrete करने के लिए, जो कि different functions हमारी body में perform करते हैं. For example, enzymes help in the process of digestion. हमारी body में जो food का digestion होता है, it is possible because of enzymes, and enzymes are secreted by the glands. तो वो epithelial tissues होते हैं जो कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, जिससे कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा है, वो सारे ही कंपोज होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम से. सारे ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्योंकि सिक्रीशन का वर्क करते हैं, इसलिए जितने भी टिश्यूज में ये सिक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, कोई केमिकल सिक्रीट हो रहा है, वो सारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम से कंपोज होते हैं. लोकेशन भी बहुत सिंपल है, जैसे कि आप सबको पता है ग्लैंडुलर वर्ड से रिलेटेड है, ग्लैंड से रिलेटेड है, तो इसकी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स में होती है. जितनी भी ग्लैंड्स की इनर लाइनिंग्स प्रेजेंट है, वो सारी इनर लाइनिंग्स का फॉर्मेशन, कोई भी ग्लैंड हो हमारी बॉडी की, चाहे वो पेनक्रियाज हो, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे वो लीवर हो, सारी ग्लैंड्स का जो इनर लाइनिंग होता है, ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ही फॉर्म होता है. सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनर लाइनिंग्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. नेक्स्ट इन फंक्शन क्या है? सारी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है सिक्रीशन का. वो हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ग्लैंड्स की हेल्प से हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का यही वर्क है, एंजाइम सिक्रीट कर. एज आई टोल्ड यू दैट एंजाइम्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, so that enzymes was secreted by glandular epithelium. next thing hormone secrete कर. हमारी बॉडी को different types of hormones की ज़रूरत होती है हमारे ग्रोथ के लिए, different एक्टिविटीज़ के लिए रिएक्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें हमारी बॉडी को हार्मोन्स चाहिए होते हैं. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो एज के साथ बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेल्स में हो या वो फीमेल्स में हो, ये सारी हार्मोन्स की वजह से होते हैं. एंड ऑल दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम. नेक्स्ट थिंग, और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी में सिक्रेट होते हैं जिसमें भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम हेल्प करता है.
mucus का secretion and milk का secretion. As you all know that in mammals mammary gland is present and mammary gland help in the secretion of milk. जितने भी mammals के young ones होते हैं वो सारे milk पे feed करते हैं and milk पे feed करने से उनकी growth possible होती है. तो mammary gland से जो milk का secretion है ये भी glandular epithelium की वजह से ही possible होता है. So this is all about glandular epithelium. Now let's talk about stratified epithelium. So it is formed by many layers of cell. इसमें सेल की बहुत सारी layers जो है वो प्रेजेंट होती है. और सेल की layers कैसे प्रेजेंट होती है कि एक के ऊपर वो एक प्लेस्ड होते हैं. पहले तो बेसमेंट होता है, बेसमेंट के बाद जो है सेल्स जो है वो एक के ऊपर एक सारे प्लेस्ड होते हैं वन अबव दी अनदर. ये जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह से होता है that all pairs rest on a membrane. जितने भी सेल्स हैं ये सारे बेसमेंट के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं. और क्योंकि एक के ऊपर एक सेल प्लेस्ड है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत थिक हो जाता है. एपिथेलियम बहुत थिकर हो जाता है इन फॉर्मेशन क्योंकि बहुत सारे सेल्स एक के ऊपर एक इस पे प्लेस्ड होते हैं. अगर इनकी लोकेशन की बात करें कि हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है. सो नंबर वन इज स्किन. हमारी जो स्किन का फॉर्मेशन होता है, स्किन में जो टिश्यूज प्रेजेंट है दे आर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज. नेक्स्ट बकल कैविटी. बकल कैविटी मीन्स द माउथ. The mouth opens into a chamber and this chamber or cavity is known as buccal cavity. हमारा जब हम माउथ ओपन करते हैं तो अंदर एक कैविटी या फिर चैम्बर हमें मिलता है. इस कैविटी को, इस चैम्बर को जो है बकल कैविटी कहा जाता है. इस बकल कैविटी का फॉर्मेशन भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज से होता है. नेक्स्ट थिंग फेरेनिक्स. फेरेनिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. बकल कैविटी के बाद जो फूड को स्टमक तक जाना है उसको फेरेनिक्स के थ्रू होके जाना पड़ता है. तो ये फेरेनिक्स का भी जो फॉर्मेशन है ये भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की हेल्प से ही होता है. नेक्स्ट थिंग ईसोफेगस. फेरेनिक्स के बाद ही जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस का प्रेजेंस होता है विच इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. कंजक्टिव और आइज की बात करें इसमें भी एपिथेलियम प्रेजेंट है. यूरिथ्रा विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है. वेजाइना विच इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स, उसमें भी एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट है. लैरिंक्स. लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स के नेम से भी जानते हैं, जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इस लैरिंक्स में भी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑल्सो एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारा जो ग्लॉटिस है उसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसको एपिग्लॉटिस बोला जाता है. वो एपिग्लॉटिस कवर्ड होता है दो फ्लैप से. एंड जैसे कि आप लोग को मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब फूड स्वॉलो करते हो उस टाइम पे वो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ताकि फूड जो है वो लैरिंक्स में ना जाए पर फेरेनिक्स में जाए. दिस इज अनदर मैकेनिज्म. तो इन सारे पार्ट्स में जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. एंड इसका ओनली फंक्शन है एंड वो फंक्शन है प्रोटेक्शन. वाई? बिकॉज अब एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं, थिक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो थिकनेस हेल्प करती है ये सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने में. सो इट्स ओनली फंक्शन इज प्रोटेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jitendra Padi. Student, today I am going to explain remaining part of the oxidation and reduction reaction. That is oxidizing agent and reducing agent. Student, first we know what is oxidizing and reducing agent. Here we define these two terms. First of all, oxidizing agent, reactant or reduction reaction. Student, in previous class I am explaining oxidation and reduction. So here reactant of reduction reaction act as oxidizing agent, while reactant of oxidation reaction act as a reducing agent. Now take example. Here we explain an example. In this reaction
FeCl3, that is ferric chloride, react with stannous chloride, that is SnCl2, to give ferrous chloride and stannic chloride. On the basis of previous class, FeCl3 convert into FeCl2. So this one is a reduction reaction. Removal of negative radical. And here SnCl2 convert into SnCl4, that is addition of electronegative element. This one is a oxidation reaction. Here we write FeCl2 conversion of FeCl3 into FeCl2, that is reduction reaction, and conversion of stannous chloride into stannic chloride is known as oxidation reaction. Okay? These two terms explained in previous class. Now, term oxidizing agent and reducing agent. Here we define reactant of reduction reaction. So student, where is the reduction reaction? This one is the reduction reaction. And reactant of reduction reaction is, for this reaction, reactant is FeCl3. So FeCl3 acts as a oxidizing agent. While next half reaction, that is conversion of stannous chloride into stannic chloride. So this one is known as oxidation. For the oxidation reaction, reactant as a reducing agent. Student, here we write down other name of these terminology. Oxidizing agent, also known as oxidizer or oxidant. Similarly, reducing agent, known as reducer or reducing agent. You can write oxidizing agent, oxidizer and oxidant, and reducing agent, reducer and reducing agent. Okay? Now, next topic for this chapter, that is condition for chemical reaction. Following conditions are necessary for performing a chemical reaction. Here we note down only char, that is close contact, heat, light, pressure, catalytic agent and electrical agent. In during audio and PDF lecture, there all the theory material given in the PDF form. Today I am going to explain this topic, that is close contact. What is the close contact? For a chemical reaction, close contact done by the grinding the solid material and by dissolving the reactant in water. So these two terms, one is the grinding for the solid material and dissolving the reactant in water. So these two conditions are sufficient for the close contact of the reaction so that a chemical reaction proceeds. Next one is the heat. Most of the chemical reaction perform in presence of heat. For example, potassium chlorate, that is KClO3, upon heating to give potassium chloride and oxygen gas. So this one is a necessary condition for a completion of a chemical reaction.
So heat is an important part of the chemical reaction or condition. Next one is the light. What is the necessary condition of light? Most of the some chemical reaction completed in presence of sunlight. Here we take an example. That is H2 gas plus Cl2 gas to get HCl gas in presence of sunlight. Okay, so here light is a necessary condition. Next one is the pressure. Pressure is also an important condition for a chemical reaction. For this point, example is N2 gas plus 3H2 gas reversibly gives 2NH3 gas in presence of Fe catalyst, MO catalyst promoter, 450 degree temperature and 200 atm pressure. So here is a pressure is the necessary condition for completion of this reaction. Now next one is the catalytic agent. Example for this one is the sulfur dioxide gas react with oxygen gas in presence of platinum asbestos to get sulfur dioxide gas, and heat is also required for this reaction. So this one is a catalytic agent for the chemical reaction, condition for the chemical reaction. Now next one is the electric current. For electric current, some chemical reaction perform in presence of electric current. So this one is also necessary condition. Here we take an example for this one. That is H2O liquid in presence of electric current upon electrolysis of water. That is called electrolysis of water to give hydrogen gas and oxygen gas. Okay. So these are the conditions for chemical reaction. Okay. This is all about today. In next class, I am discussing next part of this chapter. Thank you for attending the class. Okay. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. Yesterday you were explained voice. Yesterday I explained some rules related to changing of active and passive voice and explained only present indefinite tense. I told you if there is present indefinite tense in the given sentence, how it can be changed into passive voice. Today I will provide you some more examples of changing present indefinite tense. That means if sentences are given in present indefinite tense and you have to change them into passive voice, what you have to do? How you have to change it into passive voice. Okay.
Students, next example. What does she eat now? This sentence begins with WS type word. What? Student, here what is question word, but it also act as object. ये object का भी काम करता है and subject is she. Then how can we change it into passive voice? We will write what. That means it acts as object and it is always singular. What is, then third form of verb, eaten. What is eaten? Now you can write, or you can write now after present. What is eaten now? By she will change into object that will become her. And question word. Okay. Now next one. When do they abuse you? वे आपको गाली कब देते हैं? This is also question word. Here subject is they and object is you. Okay. What you have to write first? First write this question word in the same way as it is written. When, okay, then they subject object you will come to the place of subject, then according to you we will have to use helping verb. That means when are you? When are you abused? Now third form of the verb. When are you abused? Then by agent, that means by them. They will become them. Okay. Now next one. Who teaches you English? Students, this is special. Regarding who, there is a special rule. Who is changed into by whom. So by whom. Okay. Now you, that is subject. And English is also who teaches you English. Who is subject and you, that is object. English is also object. There are two objects, you and English. You indirect object and English is a direct object. You can choose anyone. So I am taking here you. So by whom, according to you, we will write here helping verb. By whom are you? Are you, then third form of verb, taught. By whom are you taught English? Okay, question mark. You can also change this sentence. Who? Okay, you can change this sentence like this. Who is taught you English by. You can also place by in the end of the sentence and question mark. This is also correct, but very popular way is this: by whom are you taught English? Okay, if you take English object, this can be changed by whom is. By whom is English taught you? Okay, by whom are you? Sorry, you has not been written. By whom are you taught English? Question mark. Okay, you can change like this: by whom is English taught you? If English is taken as object, it is singular, then we will write here is. Now next one, whom does your mother love most? Students, if there is question word like whom, it is changed into who. Whom will change who. Okay, so whom does your mother love most? Here your mother is subject, then it is singular. Who is always singular. So who is now third form of the verb love.
who is loved most by agent रखेंगे by your mother. Okay, now question mark. I think definitely you must have understood this. Now next one, which movie does she like most? Now which movie, that is object, this will be written as it is. Which movie? Now this is singular, that's why we will write is. Which movie is. Now third form of the verb liked. Which movie is liked most? Then you have to write agent by her. She will change into her. Okay? Which movie is liked most by her? Now next one. Sentence. When does the man cook the food? Here when is person word, we will have to write it as it is. When, now man is subject and object is the food. Then we will write object and according to the food there will be helping verb. When is the food? Then third form of the verb cooked by agent, by the man. Okay, now place a question mark. Next one, 6, 7 number. Who is it? Sorry, not this. Okay, now I will explain you. I will teach you some rules related to past indefinite tense. I will tell you if sentence is given in past indefinite, what rules you should follow. Students, it is very simple. Just as in present indefinite, we use helping verb is are, am plus with third form of the verb. In past indefinite, you have to use helping verb was, comma, were. Okay, and everything is same. Everything is common except change of helping verb. In present indefinite, we use is, are, am, but in past indefinite tense, we use helping verb was, were, and all the rules are common, same. Only there is change of helping verb. Students, past indefinite tense. Now I will tell you what is the structure of past indefinite tense in active voice and what are the rules of changing or structure in passive voice. Students, if there is past indefinite tense in active voice, there is usually subject, then we second, that means second form of the verb plus object plus OW, that means other words. This will be structure in affirmative sentence. Okay. Now if subject is, if sentence is negative, then the structure in active voice will be subject plus did not plus be first form of verb plus object plus OW, other words. This structure will be in negative. Interrogative, there is usually did before subject. Then first form of verb plus object plus OW. This will be structure in interrogative sentence. Okay, there is question mark. And to change this types of sentences into passive voice, we have to follow this rule. Like present indefinite, there is no change, only the change of helping verb. Everything is same in passive voice, only helping verb is changed. Object was, were according to subject, then third form of verb plus by agent, that means subject plus OW.
You can write OW before agent also. There is no problem. This is affirmative sentence. Now if sentence is interrogative. Interrogative, did helping verb written first? In the same way you have to write helping verb firstly. Then object, then third form of verb plus by agent, then OW, that means other words, question mark. This will be structure in interrogative sentence. Okay, students, revise these rules seriously. Next day, because if you don't know tense, if you are not able to recognize or identify what is the tense in given sentence, you can't be changed a sentence into passive voice. So you should know well if the sentence is given in active voice, then what rule will be followed in passive voice. Okay, now next day I will provide you examples of past indefinite tense. Till then, revise the rules and note down all the material in your fair grammar notebook. Okay, thank you for attending today's class. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड विषय हिंदी के अंतर्गत बच्चों मैं आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप अपनी CW की कॉपी में जो है टॉपिक डालेंगे तद्भव तत्सम शब्द। ये आपको टॉपिक अपनी कॉपी पर डालना है नए पेज से। इसके बाद बच्चों आप हेडिंग डालोगे तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द की जो परिभाषा लिखेंगे वो इस प्रकार होगी: जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर हेडिंग डालोगे बच्चों तद्भव शब्द, और तद्भव शब्द में लिखोगे संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर बच्चों आप अपनी कॉपी को का जो पेज है उसको 2 पार्ट में 2 भागों में क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। स्केल से करिएगा ये काम। एक तरफ डालेंगे आप तद्भव शब्द और दूसरी तरफ डालेंगे तत्सम शब्द। अब तद्भव, चूंकि बच्चों परीक्षाओं में आपको तद्भव शब्द नहीं लिखने को आते हैं, तत्सम शब्द लिखने को आते हैं, तो पहले क्या डालेंगे तद्भव शब्द और फिर तत्सम शब्द। अब जैसे तद्भव शब्द है अचरज, तो इसका जो है तत्सम शब्द होता है आश्चर्य। फिर बच्चों अगला शब्द मैंने लिखा 8, और 8 का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अष्ट। इसके बाद बच्चों जो अगला शब्द है वो है आंख, और आंख का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आक्षी। अगला शब्द लिखा है आग, और आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि। इसके बाद बच्चों अगला शब्द है घर, और घर का तत्सम शब्द होता है गृह। बच्चों कौन कौन से मैंने तद्भव शब्द लिखे? अचरज, अचरज का होता है तत्सम आश्चर्य। फिर अगला है 8, और 8 का क्या होता है तत्सम शब्द अष्ट। फिर अगला शब्द है आंख, आंख का तत्सम शब्द होता है अक्षी। फिर अगला शब्द मैंने क्या लिखा है
आग, और आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि। और इसके बाद जो शब्द है वो है घर, और घर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है गृह। बच्चों, तद्भव और तत्सम शब्द आप लिख रहे हैं। अगला शब्द है जीव, और जीव का तत्सम शब्द होता है जिह्वा। फिर अगला शब्द है दही, और दही का होता है दधी। इसके बाद बच्चों अगला शब्द आ रहा है धुआं, और धुआं का होता है धूम्र। तत्सम शब्द क्या होता है धुआं का? धूम्र। अगला शब्द है कछुआ, और कछुआ का तत्सम शब्द होता है कच्छप। फिर बच्चों अगला शब्द है कान, और कान का तत्सम शब्द होता है कर्ण। अगला शब्द आ रहा है किवाड़, और किवाड़ का तत्सम शब्द होता है कपाट। इसके बाद बच्चों शब्द है कोयल, और कोयल का तत्सम शब्द होता है कोकिल। कोकिल। अगला तद्भव शब्द लिखा हुआ है बूंद, और बूंद का तत्सम शब्द होता है बिंदु। अगला शब्द दिया हुआ है अमी, अमी का तत्सम शब्द होता है बच्चों अमृत। अगला शब्द है बच्चों आम, और आम का तत्सम शब्द होता है आम्र। अगला शब्द है बच्चों ओंठ, ओंठ का तत्सम शब्द होता है ओष्ठ। इसके बाद बच्चों जो अगला तद्भव शब्द है गेहूं, और गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधूम। फिर बच्चों अगला शब्द लिखा है घी, और घी का तत्सम होता है घृत। फिर अगला शब्द है दूध, और दूध का तत्सम होता है दुग्ध। फिर शब्द है ईख, और ईख का तत्सम शब्द होता है इक्षु। अगला शब्द आता है बच्चों काज, और काज का होता है कार्य। और काम का बच्चों तत्सम शब्द होता है कर्म। फिर बच्चों अगला शब्द है कुम्हार, और कुम्हार का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कुंभकार। कुंभकार। अगला शब्द लिखा हुआ है बहू, और बहू का तत्सम शब्द होता है वधू। फिर बच्चों अगला तद्भव शब्द है मुंह, और मुंह का होता है तत्सम मुख। अगला शब्द लिखा हुआ है मीठा, और मीठा का तत्सम शब्द होता है मिष्ठ। अगला शब्द दिया हुआ है बच्चों मोर, और मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। फिर बच्चों अगला शब्द लिखा हुआ है नेह, और नेह का तत्सम शब्द होता है स्नेह। बच्चों आपको ये अपनी CW की कॉपी में लिखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से शुद्ध वर्तनी में इसको लिख सकें। जीव का क्या होता है? जिह्वा होगा। दही का दधी होगा। धुआं का धूम्र होगा। कछुआ का कच्छप होगा। कान का क्या होगा? कर्ण। किवाड़ का कपाट। कोयल का कोकिल। बूंद का बिंदु होता है। अमी का अमृत। आम का आम्र। ओट का ओष्ठ। गेहूं का गोधूम। घी का घृत। दूध का क्या होता है? तत्सम दुग्ध। ईख का इक्षु। काज का कार्य। काम का कर्म। कुम्हार का कुंभकार। बहू का वधू। मुंह का मुख। मीठा का क्या तत्सम होता है बच्चों? मिष्ठ। मोर का मयूर। नेह का
स्नेह। बच्चों, अगला शब्द यहाँ लिखा हुआ है पाहन, और पाहन का होता है पाषाण। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? तद्भव और तत्सम शब्द लिख रहे हैं। पिता का होगा बच्चों पितृ, पितृ। फिर पोता, पोता का होगा पौत्र। अगला शब्द है बच्चों शक्कर, और शक्कर का तत्सम शब्द होता है शर्करा, शर्करा। अगला तद्भव शब्द लिखा है बच्चों सुहाग, और सुहाग का तत्सम शब्द होता है सौभाग्य। अगला शब्द है बच्चों साग, साग। साग का जो होता है, साग का शाक होता है। अगला शब्द है बच्चों शीश, और शीश का होता है शीर्ष। अगला शब्द दिया है बच्चों सेठ, और सेठ का होता है तत्सम शब्द श्रेष्ठी, श्रेष्ठी। फिर दिया है शब्द सीख, और सीख का जो बच्चों तत्सम शब्द होता है वो होता है शिक्षा। अगला शब्द है बच्चों हाथी, और हाथी का जो तत्सम शब्द होता है वो है हस्ती। फिर बच्चों अगला शब्द दिया है अंधा, और अंधा का होता है अंध। तद्भव शब्द क्या दिया हुआ है? हड्डी, और हड्डी का तत्सम शब्द होता है अस्थि, अस्थि। अगला शब्द है ऊंट, ऊंट का होता है उष्ट्र, उष्ट्र, उष्ट्र। फिर शब्द है किसन, किसन का बच्चों जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कृष्ण। फिर शब्द दिया हुआ है, तद्भव शब्द दिया है गधा, और गधा का होता है गर्धव। अगला शब्द बच्चों तद्भव मैंने लिखा है मिट्टी, और मिट्टी का होता है मृत्तिका। फिर शब्द दिया हुआ है तद्भव शब्द सौ, और सौ का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है शत। फिर बच्चों अगला शब्द कौन सा है? भाप, और भाप का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है वाष्प। अगला शब्द क्या लिखा गया है बच्चों? घड़ा, और घड़ा का तत्सम शब्द होता है घट। फिर अगला शब्द कौन सा लिखा हुआ है? जेठ, और जेठ का जो तत्सम शब्द होता है बच्चों वो होता है ज्येष्ठ। बच्चों एक बार पुनः देख लें आप, ताकि जो है आप आसानी से इसको क्या कर सकें, लिख सकें। लिखते समय वर्तनी का विशेष ध्यान रखेंगे। पहला तद्भव शब्द कौन सा दिया है? पाषाण, पाहन, तो इसका क्या होगा तत्सम? पाषाण। पिता का पितृ, और इसके बाद कौन सा दिया हुआ है तद्भव शब्द? पोता, पोता का क्या होता है? पौत्र। फिर है शक्कर, शक्कर का क्या होगा? शर्करा। फिर है सुहाग, सुहाग का तत्सम शब्द तो सौभाग्य। फिर है साग, और इसका क्या होता है तत्सम शब्द? शाक। फिर कौन सा शब्द दिया है? शीश, शीश का होगा शीर्ष। फिर सेठ, सेठ का होगा श्रेष्ठी। अगला शब्द है सीख, और सीख का जो बच्चों तत्सम शब्द होता है वो होता है शिक्षा। फिर अगला शब्द दिया है हाथी, और हाथी का तत्सम शब्द होता है हस्ती। अगला है अंधा, अंधा का तत्सम अंध। हड्डी, हड्डी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अस्थि। फिर ऊंट, ऊंट का तत्सम शब्द होता है ऊष्ट्र। फिर शब्द दिया है किसन, और किसन का जो तत्सम शब्द होता है वो है कृष्ण। अगला शब्द है गधा, गधा का तत्सम गर्धव। फिर दिया है मिट्टी, मिट्टी का जो तत्सम शब्द होता है वो है मृत्तिका। मृत्तिका में दो ता हैं बच्चों, इस बात को विशेष ध्यान देंगे आप।
फिर अगला शब्द है 100 और 100 का जो दशम शब्द होता है वो होता है शत। अगला है भाप, भाप का वाष्प, घड़ा, घड़ा का क्या होगा घट, और फिर कौन सा है जेठ, और जेठ का क्या होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं इस टॉपिक को अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of LGUI. Myself Kajal Trivedi, your maths teacher. Students, in my previous class, I started the chapter algebraic identities or expansion. Okay. Now, today we will discuss some question of the algebraic identities or the expansion formula of square means degree 2. Okay. Now, let's see the first question. If a plus 1 upon a is equals to 6 and a does not equal to 0, then find the value of a minus 1 upon a and a square minus 1 upon a square. Okay students, now let's see the solution. What will we do? Firstly we have a plus 1 upon a is equals to 6. Okay, now squaring on both sides. Squaring on both sides. If we square, we get a plus 1 upon a whole of square is equals to 6 square. Okay. Here, student, we use the identity a plus b whole of square, which is a square plus b square plus 2ab is equals to 6 square is 36. Okay. Here when we solve it, we get a square plus 1 upon a square plus 2 is equals to 36. Means a square plus 1 upon a square is 36 minus 2. Means a square plus 1 upon a square is equals to 34. Okay. Now students, for first number question, we have a square plus 1 upon a square is equals to 34. Now again what we do? We subtract 2 on both sides. Okay, subtract 2 on both sides. 2 on both sides. We get a square plus 1 upon a square minus 2. Student, and is equals to 34 minus 2. Here we can write a into 1 upon a. Okay, if we cancel out a upon a, we get 2. We can write now it becomes the formula of a minus b. A square plus b square minus 2ab. Okay, then it becomes a minus b whole of square is equals to 34 minus 2 is 32. Okay students, a square, when we open the square, a square plus b square minus 2ab, then a minus b is equals to plus minus under root 32. Okay, now okay students, when we factorize it, it become a minus 1 upon a is equals to, we can write 32 is equals to 16 into 2 and 16 is equals to 4 into 4. It means it become a minus 1 upon a is equals to plus minus 4 into 4 into 2. Okay, then when we square it, it become a minus 1 upon a is equals to 4 root 2 plus minus 4 root 2. The first answer is 4 root 2. Now for the second is find the value of a square
minus 1 upon a square. Okay, let's see the solution. Still we know that the identity a square minus b square, we know that is equals to a minus b, a plus b. Okay, then if we can write this formula a minus 1 upon a square, we can write it in the form of a minus 1 upon a plus 1 upon a. Clear? The value of a minus 1 upon a is equals to plus minus 4 root 2. Okay? And the value of a plus 1 upon a is equals to 6. When we multiply it, we get plus minus 24 root 2 a square minus 1 upon a square is equals to. Okay, students? Student, the next question is, if a square minus 1 upon minus 5a minus 1 is equals to 0, then find the value of a minus 1 upon a plus 1 upon a square minus 1 upon a. Now let's see the solution. What will we do? We have value a square minus 5a minus 1 is equals to 0. We divide by a on both sides. Dividing a on both sides, we get a square upon a minus 5a upon a minus 1 upon a is equals to 0. Here students, cancel out. We get a minus 5 minus 1 upon a is equals to 0. Then a minus 1 upon a is equals to 5. Okay? This is equation number 1. That is equation number 1. Now, the first is find the value of a minus 1 upon a. Then, this is the answer of first. A minus 1 upon a. Now, for the second, a plus 1 upon a. We know that a square of a plus 1 upon a is equals to a square plus b square plus 2ab. Okay. Now students, firstly we will find the value of a square plus 1 upon a square. Okay. Let's see. We have a minus 1 upon a whole of square is equals to a square plus 1 upon a square minus 2ab. Okay, students, we can write this formula. Now, from equation number 1, the value of a minus 1 upon a is 5. Okay, then it will become 5 square is equals to a square plus 1 upon a square minus 2. Okay, then 525 plus 2 is equals to a square plus 1 upon a square. Then the value of a square plus 1 upon a square is 27. Okay, put this value in the question number 2. Okay, let this equation number 2, and from equation number 2, we get this is 27 plus 2ab, it become a into 1 upon a means plus 2. It is 29. Okay, 29. The value of a plus 1 upon a whole of square is equals to 29. Then the value of a plus 1 upon a is equals to plus minus under root 29. Okay, this is the answer of the second question. Now for the third question, find the value of a square minus b minus. We know that we can write it in the form of a minus 1 upon a plus 1 upon a.
then it becomes plus minus 5 root 29. This is the value of a square minus 1 upon a square. Okay, students? So the next question is 7.83 into 7.83 minus 1.7 into 1.7 upon 6.66. Solve this equation, solve it with the help of identities. Okay? Now, should we can flex the solution? We can write it 7.83 whole of square minus 1.17 whole of square. Okay? Now, 6.66. Here we use the identity a square minus b square, which is a minus b and a plus b. Okay? Upon 6.66. And students, when we add it, we get 6.66. Okay? Now, when we add it, we get into 9 upon 6.66. Cancel out 6.66 by 6.66, we get the answer, which is 9. Okay? Now, see the next question. This is question 4. If a plus 1 upon a is equals to 2, then find the value of a square plus 1 upon a square and a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4. Now students, we have a plus 1 upon a is equals to 2. Okay? Squaring on both sides. Squaring on both sides. Okay? We get a plus 1 upon a whole of square is equals to 2 square. A plus 1 upon a, we use a square plus 1 upon a square plus 2ab is equals to 4. Then the value is a plus 1 upon a square is equals to 4 minus 2. Then a square plus 1 upon a square is equals to 2. Okay? A square plus 1 upon a square is equals to 2. Now, students, for the next question, next part, find the value of a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4. This is equation number 1. We have equation number 1, a square plus 1 upon a square is equals to 2. Okay? Now, students, when we find the value of 4, again squaring on both sides. For this, again squaring on both sides. Okay? Then a square plus 1 upon a square whole of square is equals to 2 square. It becomes a raised to 4, actually square 2 plus 2a square into 1 upon a square is equals to 4. Okay? Here students, 2 into 2 is 4, a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4 is plus 2 is equals to 4. Then a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4 is equals to 4 minus 2. Then a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4 is 2, and the answer is 2. Okay? Now students, that's all for today. We will continue this chapter on my next class with some another type of question. Okay, thank you so much. Good morning students. Students, in our today's lecture, we have started the chapter Laws of Motion, and in that we have discussed what is force, effect of force,
and classification of force, contact and non-contact force. And in contact force we have discussed frictional force and tension force and normal force. And in non-contact force we are going to discuss in non-contact force we have discussed first one, which is gravitational force. Gravitational force, as I told you, it is a non-contact force, and gravitational force, the cause of gravitation is mass. I told you the cause of gravitation is mass, and any two bodies which is mass, any two mass particle attract each other. And as I told you, gravitational force, student, is always attractive in nature. It is not repulsive in nature. It is always attractive in nature. Now we will talk about electrostatic force. We will talk about electrostatic force. We will talk about electrostatic force, which is also, student, non-contact force. Student, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी फोर्स है उसका एक फील्ड जो है, जैसे फील्ड फोर्सेस भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। फील्ड का क्या मतलब होता है? फील्ड का मतलब होता है इन फोर्सेस का जहां तक इफेक्ट होता है, जितने रीजन तक इनका इफेक्ट होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड। तो यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी भी अपना एक क्या रीजन है। तो इसके लिए हमें समझना है कॉज क्या है। कॉज हमारा यहाँ पर है चार्ज पार्टिकल। क्या है? चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आप जानते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे आपको पता है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, प्रोटॉन आपने सुना है। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है, स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है, ये कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और आपका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ये आपका क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो ये जो फोर्स होते हैं, स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं, ठीक है, इसका मेन कॉज है चार्ज पार्टिकल का रेस्ट पर होना। क्या होना? चार्ज पार्टिकल का रेस्ट पर होना। Suppose I have taken a charged particle, that it is positively charged particle, and it is at rest, and its charge is q, small q. Charge is represented by the symbol small q. So it is a positively charged particle, small q represented by small q. And if it is at rest, if a charged particle is at rest, then, students, there is a field around us. There is a field around us. It means ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक फील्ड, एक इसका इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट हमें क्या होता है? विजुलाइज नहीं होता, हम इसे देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप ग्रेविटी को नहीं देख सकते, आप ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। यू कैन फील ग्रेविटी, यू कैन नॉट सी ग्रेविटी, यू कैन नॉट सी फील्ड। इन द सेम वे, यू कैन नॉट सी द फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, यू कैन एक्सपीरियंस दिस फील्ड, बट यहाँ पर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कराना है? इंटर कराना है। तो द फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, व्हिच आई टोल्ड यू, देयर इज अ फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड व्हेन इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, यू हैव टू प्लेस अनदर चार्ज पार्टिकल इन दिस रीजन। तो आपको दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में क्या करना है? एंटर करना है। तो जैसे ही आप दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे, तब उस पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी इसकी फील्ड उस पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी, और उससे आप समझ जाएंगे कि इसका उस पर क्या हो रहा है? इफेक्ट लग रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है। एंड जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाते हैं, इंटर कराते हैं। दिस इज द आल्सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड दिस इज अ q1। ठीक है, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा, इसके रीजन में आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पर क्या करेगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। जैसा कि आपको पता है, दोनों ही पोलैरिटी दोनों की क्या दिख रही है? आपको सिमिलर दिख रही है, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका क्या कांसेप्ट है? ये जब आप क्लास 12 में जाएंगे, तब आपको उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको सिंपल ये समझना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो कि रेस्ट पर है, इसके चारों तरफ एक क्या है? फील्ड है। वो फील्ड वी कैन नॉट सी दैट फील्ड, और
और ये जो चार्ज पार्टिकल आप देख रहे हैं ये भी इस पर इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं, आप देख रहे हैं देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट इन बिटवीन देम, ठीक है। उसके बाद भी क्या हो रहा है, देयर इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स हियर प्रेजेंट हियर, दैट इन दैट वे वी कैन से दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स और इट इज फील्ड फोर्स। So what is the cause of electrostatic force? The cause of electrostatic force is the charge at rest. तो चार्ज जो आपका रेस्ट पर होता है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड में जब दूसरा चार्ज आप लेकर जाते हैं तो उस चार्ज पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट फोर्स कैन बी रिपल्सिव इन नेचर, दैट कैन बी अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे मान लीजिए आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पर लाते हैं, मान लीजिए हम लेकर आ रहे हैं Q1 माइनस का, ठीक है, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी है, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, और ये डायरेक्शन फोर्स की किधर होगी, इस इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए लाइन से, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इनवर्ट, इस पर भी जो फोर्स अप्लाई होगा इनवर्ट, यानी ये इसको इनवर्ट अपनी तरफ क्या करेगा, टुवर्ड्स ड्रॉ टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ये जो है ये इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स कहां लग रहे हैं, इनसाइड लग रहे हैं, तो ये फोर्स कैसा है, these are attractive force and this is the repulsive force. So this electrostatic force are both in nature, that is it is attractive and it is repulsive, but gravitational force was only attractive in nature, they are not in repulsive in nature. So now we talk about, students, another one, that is magnetic force. Magnetic force. What is magnetic force? You have seen that magnet, a bar magnet, you know that, you have seen that magnet, a bar magnet, it has two poles, north and south. You know that magnet cannot exist in single pole, there is always two poles, north and south. If you cut it here from here, then automatically a north pole develops here and a south pole develops here. So we cannot separate poles of the magnet by cutting in either way, any way. Okay. Now magnetic force आपको पता, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक बार मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रखा हुआ है मैग्नेट है, इसके चारों तरफ भी ये क्या डेवलप हो जाएगी, फील्ड डेवलप हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर था ये चार्ज पार्टिकल आपका रखा हुआ है इस पर, इसके चारों तरफ क्या थी, फील्ड, और जब इसकी फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर जा रहे थे तो ये फील्ड इस पर चार्ज पार्टिकल पर क्या कर रही थी, इफेक्ट कर रही थी, फोर्स अप्लाई कर रही थी, दैट फोर्स वुड बी रिपल्सिव, दैट फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव। इन द सेम वे यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, देयर इज आल्सो अ फील्ड अराउंड द मैग्नेट, एंड इफ वी ब्रिंग अनदर मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन वी ब्रिंग अनदर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है आपके, जैसे कि आपका आयरन, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेकर जाते हैं तो इसकी फील्ड की वजह से उस पर क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। जैसे कि मान लीजिए हम एक बार मैग्नेट लेकर जा रहे हैं और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल की तरफ है, ठीक है, तब क्या होगा, दिस नॉर्थ एंड दिस नॉर्थ दोनों एक दूसरे के फेस आमने सामने दिख रहा है आपको, दे आर फेसिंग ईच अदर, नॉर्थ एंड नॉर्थ सिमिलर पोल ऑलवेज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दे रिपल ईच अदर, रिपल्सिव। इन द अपोजिट सेंस अगर हम यहाँ पर एक साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ इस तरीके से रखते हैं, तब नॉर्थ और साउथ इनके बीच में दोनों फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। So this magnetic force also in attractive and repulsive in nature, just like electrostatic force, but gravitational force are always attractive, they are not repulsive in nature. So this is the magnetic, electrostatic, and in the last lecture we have discussed gravitational force. So these are all about non-contact force. One important point about non-contact force is I am telling you that student, non-contact force are inversely proportional. Non-contact force are, all the non-contact force are inversely proportional to radius distance square of the distance.
write that non-contact forces are inversely proportional to square of the distance between them. So this is the very important point about non-contact force, whether it is gravitational force, whether it is electrostatic force or magnetic force. All the non-contact forces are inversely proportional to the square of the distance between them. So we have the formula for gravitational force when I taught you in the next chapter. Then there is a gravitational chapter and we will talk about the gravitational force formula. But here I am giving it for this point only. So F is equal to capital G m1 m2 upon r square. So this is the gravitational force formula, and this capital G is universal gravitational constant. It is universal gravitational constant. This is the universal gravitational constant, and this is the mass of the object 1 and object 2, and this is the distance between there. So you are seeing that this force is inversely proportional to the square of the distance between them. So in the same way, electrostatic force is also inversely proportional to the square of the distance between them. So this is the important property about all the field forces or non-contact forces. Second property of the non-contact forces, they are attractive or repulsive in nature. They are attractive and repulsive in nature. So this is the important point. Another important point, they are attractive or repulsive in nature, and as we see that electrostatic force are both attractive and repulsive, and magnetic force are both attractive and repulsive. But the gravitational force is always, so important point, gravitational force is always attractive. Gravitational force is always attractive. This is always attractive. Okay, and the cause of gravitational force is what, student? It is the mass. The cause of the existence of gravitational force is mass. मास की वजह से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज क्या है आपका? चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। एंड Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Today's lecture is about class 9 ICSE Geography Chapter 2, Geographic Grid Latitudes and Longitudes. Chapter अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको in my previous video मैंने आपको बताया कि there are 24 time zones. मैंने आपको बताया था कि 24 टाइम जोन्स होते हैं और 1 जोन इक्वल टू 15 लॉन्जिट्यूड्स। जो 1 जोन होता है वो 15 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करता है और देयर आर 360 लॉन्जिट्यूड्स। 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं और इस तरीके से हमारा 24 आवर्स में जो हमारी अर्थ होती है वो 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करती है, क्योंकि हमारी अर्थ एक्सिस पे जो है वो रोटेट होती है और उसको पूरा 1 डे मतलब 24 आवर्स लगते हैं अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और 1 रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब होता है 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करना, क्योंकि पूरे ग्लोब पर या पूरे अर्थ पे 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 24 टाइम जोन्स हम क्लियर कर चुके हैं।
अब इसके बाद हमने कल आपको बताया कि जिस तरह से टाइम जोन्स होते हैं वैसे ही इंडिया जो हमारी आती है वो किस टाइम जोन में आती है, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, मे बी जैसे कि दिस इज अ ग्लोब, मैंने बताया ये इक्वेटर है, क्लियर है। अब फिर मैंने आपको बताया एंड दिस इज द व्हाट इज दिस ग्रीनविच, ओके, प्राइम मेरिडियन, एंड दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो द 0 डिग्री, क्लियर है। फिर हमने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ बताया था आपको, 23.5 डिग्री पे, इज इट क्लियर। ये हमारा एक एटीट्यूड था। अब आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा है, इंडिया के मैप में हमने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को कहाँ से डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल बीच से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर होगा, वो इस लैटिट्यूड पे होगा और उसके बीच से क्रॉस कर रहा होगा, इज इट क्लियर। जैसा कि हमें पता है हमारी इंडिया ईस्ट कहलाती है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही यहाँ पर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो आए थे, तो ईस्ट का मतलब हो गया कि द फर्स्ट थिंग इज कि नॉर्थ में है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता तो ये साउथ होता, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये क्लियर है कि इंडिया नॉर्थ में है अर्थ के, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ईस्ट में है, क्योंकि हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट पार्ट, ये हमारे ग्लोब के ईस्ट में है। तो अब हमारा ये हो गया, ये तो हो गया हमारा नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ का पोर्शन हो गया। अब नॉर्थ तो पूरा है बट हमें ईस्ट चाहिए, तो ये हमारा, ये जो हमारा पोर्शन है इसका मतलब ये है कि इंडिया इतने पार्ट में मे बी पॉसिबल कि हमारी इंडिया ये इस तरीके से यहाँ पर हो, लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बीच से कट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की एक सिचुएशन है जो हमें ग्लोब पर दिखती है। अब हमने आपसे बताया कि एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम मतलब शॉर्ट में IST भी बोलते हैं, फर्स्ट थिंग। अब जो हमारा टाइम जोन है, अब मैंने आपको बताया कि 24 टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है, जो 15 लॉन्जिट्यूड 8 टाइम जोन को कवर करता है। तो जो इंडिया में, अब देखिए लॉन्जिट्यूड्स का मतलब तो ये ऐसे सभी लॉन्जिट्यूड्स चली आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करूंगी कि जो इंडिया है वो सिर्फ वो एक टाइम जोन को, मतलब कि 15 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करता है, सिर्फ एक टाइम जोन को। मतलब इंडिया के यहाँ से, मतलब हमारा गुजरात से लेके और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश, या हम सोचते हैं कि हमारा नागालैंड और मणिपुर है, यहाँ के पूरे एरिया में हमारी 15 लॉन्जिट्यूड्स उसको कवर करती है, मतलब कि एक टाइम जोन। तो इंडिया का जो एक टाइम जोन उन्होंने निकाला है वो हमारा क्या है, 82 डिग्री 30, ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन है, इसका जो हमने सेंट्रल निकाल लिया, इज इट क्लियर। मतलब 15 लॉन्जिट्यूड्स को कवर कर रही है, 15 में हमने उसका एक सेंटर निकाला, तो जो सेंट्रल लॉन्जिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 पर है। इस तरह से हम लोग एक IST को निकालते हैं, इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम हमने निकाल लिया। अब आपको इससे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो हमारा 82 डिग्री 30 है वो पास होता है इलाहाबाद से, ये मतलब हमारा इलाहाबाद, आप देखेंगे यूपी है और यूपी में हमारा इस जगह पर इलाहाबाद आता है, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर है। तो ये जो हमारा लॉन्जिट्यूड जा रहा है 82 डिग्री नॉर्थ पर, 82 डिग्री 30 पर, वो हमारा पास थ्रू हो रहा है फ्रॉम नियर इलाहाबाद के पास से, इज इट क्लियर। एंड नेक्स्ट इट इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं। जैसे प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है अर्थ का और ये हमारा इक्वेटर है, ऐसे ही जो हमारा 82 डिग्री 30 पर जो हमारा लॉन्जिट्यूड पास थ्रू हो रहा है नियर इलाहाबाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा क्लास 9 का ICSE बोर्ड का सेकंड चैप्टर चल रहा है, ज्योग्राफी ग्रिड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, जिसमें मैंने आपको पहले के वीडियोस में ग्रिड और लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में बताया। और अब हम अभी पढ़ रहे हैं इस समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IST भी बोलते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम
5 मेरिडियन है और 0 डिग्री पर होता है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताऊंगी मैं इस टॉपिक में कि 2 टाइप्स की क्लॉक्स होती हैं। एक होती है 12 आवर क्लॉक्स और एक होती है 24 आवर्स क्लॉक। आप लोगों ने अक्सर जो है एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशन पे आप जब वॉच देखते हो, क्लॉक्स देखते हो, तो वो जो क्लॉक्स होती हैं वो आपने हमेशा देखा होगा कि 12 के बाद उसमें फिर से 1 PM नहीं होता है। 12 के बाद वो 13, 14, 15 लाइक दैट होता है। मैं भी क्लियर करती हूँ, जैसे कि 12, 6, 3 and 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये हमारी वॉच होती है। दिस इज अ 12 o'clock वॉच। देन द नेक्स्ट इज इसमें यहाँ से हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 ये हमारी 24 o'clock। मतलब इसका कि जब 1 o'clock होगा तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं 1 AM, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पर 1 होगा तो हम इसको बोलेंगे 13 PM। दिस इज क्लियर करता है कि जो है ये 24 आवर क्लॉक्स है। इसके साथ ही कल हमने पढ़ा कि देयर आर द 24 टाइम जोन्स। मैं पढ़ा रही हूँ आपको कि हमने बताया 24 टाइम जोन्स होते हैं जिसमें कि 1 टाइम जोन इज इक्वल टू 15 लॉन्जिट्यूड्स। मतलब एक टाइम जोन जो होता है वो 1 जोन इज इक्वल टू 15 लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो 1 लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू, अब 1 लॉन्जिट्यूड में हमने आपको बताया कि 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 15 लॉन्जिट्यूड्स में हो जाएगा 15 into 4 तो 60 मिनट्स। तो हमारा जो हमारा 15 लॉन्जिट्यूड्स है वो हमारा 60 मिनट है। मतलब कि 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे में 1 आवर में 15 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करना, दैट इज इसका मीन्स ये हुआ। अब जब 1 आवर में 15 लॉन्जिट्यूड्स कवर हो रहे हैं तो 24 आवर्स में ही 360 कवर हो जाएंगे। आप इसको देखिए कि आपको ये मालूम है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट करती है। तो उसमें हमने आपको बताया कि ग्लोब्स में ग्रीनविच से इधर की तरफ 180 लॉन्जिट्यूड्स है और 180 लॉन्जिट्यूड्स इधर है। तो इसका मतलब टोटल हो गया 360 लॉन्जिट्यूड्स। तो एक रोटेशन का मतलब अर्थ का 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करना, उसमें पूरा रोटेशन करना। जब 1 लॉन्जिट्यूड 15 लॉन्जिट्यूड्स 1 आवर में कवर करती है तो 360 लॉन्जिट्यूड्स जो होती है वो 24 आवर्स में कवर करती है। इसी तरीके से हर एक जोन में 15 लॉन्जिट्यूड्स, एक जोन जो होता है वो कवर करता है 15 लॉन्जिट्यूड्स। इस तरीके से करके 24 जो है वो टाइम जोन्स हमारे होते हैं। अब इंडिया का देखना है हमें कि इंडिया में कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत बड़े कोई कंट्रीज होते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा टाइम जोन्स भी होते हैं। बट इंडिया में एक ही टाइम जोन है, एक टाइम जोन के अंदर ही इंडिया हमारी आ जाती है, क्योंकि इंडिया जो है वो एरिया वाइज इतना ज़्यादा जो है डेवलप नहीं है इसका। इसलिए अब वो सिर्फ एक टाइम जोन को कवर करती है, मतलब कि 15 लॉन्जिट्यूड्स को। 15 लॉन्जिट्यूड्स में भी हमने उसका एक मीडियम बीच का जो हिस्सा होता है वो हमने देखा, जो हमारा है 82 डिग्री 30। तो इंडिया का इसको स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। हमें जब इंडिया के टाइम को क्लियर करना होता है तो हम 82 डिग्री 30 से ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जी लंदन का मतलब ये हमारा जो हमारी ये ग्रीनविच है उसके इस तरफ मान लीजिए, या फिर हम इसको ही लेकर चलते हैं। मान लीजिए अपनी ग्रीनविच में इफ देयर इज अगर मान लीजिए ग्रीनविच पे 12 o'clock होगा, ठीक है। अगर ग्रीनविच की जो मीन टाइम है यहाँ पर 12 o'clock है। मैंने आपको बताया कि जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, ईस्ट की तरफ जब हम आगे जाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज होता जाता है 4 मिनट करके, ठीक है। और जब हम जो है वेस्ट की तरफ आते हैं तो हमारा टाइम डिक्रीज होता है। तो हमको जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम इन दोनों को अगर हमें फिक्स करना है, अगर हमें इसकी फिक्सिंग देखनी है कि किस तरीके से सेट होता है, तो हमें ये निकालना है कि ग्रीनविच में जो भी टाइम जिस समय होगा उस लॉन्जिट्यूड पे उस समय इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, ये हमको पता करना है कि कितना डिफरेंस है ग्रीनविच टाइम में और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में। उसको
निकालने के लिए हमने मान लीजिए कि हमारा 12 o'clock यहाँ पर बचा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लॉन्जिट्यूड की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि जब इंडिया हमारा 82°30 लॉन्जिट्यूड पे आ रहा है तो उसमें हमारा 55.5 डिग्री का डिफरेंस आता है। जब आप इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 12 o'clock है तो जो है हमारी इंडिया में उस समय टाइम क्या होगा, 12 के बाद 1 2 3 4 5 वहां पर बजे होंगे 5 और 30 मिनट्स। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीनविच टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में 5.5 घंटे का जो है वो डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ 1.5 आवर्स अहेड, समझ में आया? क्योंकि वो जो है ग्रीनविच टाइम से इतना टाइम ज्यादा लगता है। तो ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, IST और GMT का हमने फिक्सिंग दिखाया है इसमें कि किस तरीके से हम निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया कि वन जोन जो है वो 15 लॉन्जिट्यूड को कवर करता है। इसी तरह से 24 हमारे जो टाइम जोन्स है, टाइम जोन्स इज इक्वल टू 360 लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। और इस तरह से हमने ये निकाला कि जब अगर ग्रीनविच में 12 o'clock होगा तो इधर की तरफ जब हम ईस्ट की तरफ पढ़ेंगे तो उसमें 1.5 आवर्स ज्यादा होंगे, वो टाइम हमारा दिखाना होगा। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप लोग अपने घर में भी जो है वो कर सकते हैं, या अपने नेट पे निकाल के इस तरह के जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ICSE बोर्ड के उसमें पढ़े रहते हैं। आप प्लीज उसको प्रैक्टिस करिए। इफ देयर इज एनी डाउट आप डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं एक थोड़ा सा और उसका छोटा सा एक लेक्चर दूंगी, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।